Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos on the topic of force and laws of motion. Specifically designed for Class 9 students of CBSE and other boards, this physics tutorial aims to provide a clear understanding of Newton's laws, momentum, and related concepts. The videos explore the fundamental forces that govern the movement of objects and emphasize the relevance of these laws in our daily lives. With engaging examples and practical demonstrations, learners are encouraged to broaden their understanding and apply the principles in real-world scenarios. Through this knowledge-packed explanation, students are guided step by step to comprehend the three laws of motion proposed by Sir Isaac Newton. The concepts of inertia, acceleration, and action-reaction pairs are explained in a simplified manner, making it easier for students to grasp these essential ideas. Moreover, the tutorials also delve into momentum, highlighting its significance in determining the motion of objects. Students will gain an in-depth understanding of how mass and velocity affect momentum and how this principle can be employed in various situations. Ignited Minds Tutorials strives to pave the way for an enhanced learning experience, ensuring that students become more confident in their knowledge of force and laws of motion. With these videos as a valuable resource, learners can strengthen their grasp on this crucial topic and excel in their physics studies. Momentum. What is momentum? By the way, what is momentum? Momentum क्या होता है भाई साहब? जल्दी. Mass into velocity. Product of mass into velocity. तो क्या momentum एक वेक्टर क्वांटिटी है? Yes. Why? Because velocity आपका वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज मास तो आपका स्केलर है. ठीक है. Okay, so momentum, the sum of the momentum of two objects before collision is equal to the sum of the momentum of the after collision, provided there is no external unbalanced force acting on it. ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है. ठीक है. तो अगर समझ लो दो बॉडीज हैं, ठीक है, एक का मास है भाई साहब m1 और एक का मास है m2. ठीक है. ये आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी u1 से, ये आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी u2 से. ठीक है. इनका भाई साहब हो गया कोलिजन. कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? लेट्स से v1 और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v2. ये हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका m2. ठीक है. तो आपका जो ये है, मतलब ये जो टोटल मोमेंटम था बिफोर कोलिजन, दिस विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ठीक है. ये बोलता है द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या है? m1 u1. ठीक है. इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा बोलो? प्लस m2 u2 होगा, लेकिन ध्यान दो u2 इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस. ठीक है. क्योंकि आपने अगर इसको पॉजिटिव लिया तो ऑब्वियसली इसको क्या लेना पड़ेगा? आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस विल बी हाउ मच पीपल? दिस विल बी माइनस m2 u2 हो जाएगा. ठीक है. क्लियर है? माइनस m2 u2 हो जाएगा. ओके. अभी इसमें आते हैं. देखो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा बोलो? m1 u1 v1 इस तरफ है, इस तरफ वाले को आप नेगेटिव ले रहे हो, तो ये वाला क्या हो जाएगा? m1 v1 माइनस, है ना, और ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस. तो ये हो गया आपका m2 v2 प्लस. सिंपल है. देखो एक साइड को प्लस लेना है, एक साइड को नेगेटिव लेना है. अगर मैंने इस साइड को प्लस लिया तो आपका u1 प्लस हो गया, साथ ही साथ u2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. अगर मैंने भाई साहब इस साइड को प्लस लिया, ठीक है, इस साइड को आपने नेगेटिव लिया है, तो आपका v1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और v2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो आपका m1 u1 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m2 v2. ठीक है. सो टोटल मोमेंटम, अभी हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब? यहाँ पे अगर हमने इसको इधर कर लिया तो m1 u1 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m2, इसको इधर कर लिया भाई साहब u2 प्लस m2 v2. ऐसा भी लिख सकते हैं भाई साहब इसको तोड़ मड़ोड़ के. ठीक है. क्लियर है? ओके. सो सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन, इसको लिख लीजिए भाई साहब. इट हैज टू बी रिटन वर्ड टू वर्ड. जल्दी भाई साहब, क्विक. Okay, so the momentum of two objects before collision is equal to the sum of the momentum of after collision. ठीक है. आपका भाई साहब देखो, जैसे समझ लो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B. ठीक है. A and B कोलाइड, तो आपका समझ लो यहाँ पे A और B क्या हो रहा है भाई साहब? कोलिजन हो रहा है. ठीक है. A and B आर कोलाइडिंग. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट A है और ऑब्जेक्ट B है, बोथ आर बेसिकली कोलाइडिंग. ये मास A हो गया और ये हो गया आपका मास B. इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से UA है और ये हो गया भाई साहब UB है. ठीक है.
फाइनल वेलोसिटी वी ए और वी बी है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट टी। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया आपका एम ए यू ए, मोमेंटम बिफोर कोलिजन फॉर बी ये हो गया एम बी यू बी, ठीक है। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये हो गया एम ए वी ए, एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दिस विल बी एम बी वी बी। सो ड्यूरिंग कोलिजन चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो व्हाट विल बी द चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट ए, एम वी ए माइनस यू ए बाई टी, है कि नहीं, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, वी ए माइनस यू ए बाई टी, ओके। और यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बी कितना हो जाएगा, वी बी माइनस यू बी बाई टी, ठीक है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरी एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आपका समझिए यहाँ पे एफ ए बी, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है, ओके। तो एम वी माइनस ए बाई टी दिस विल बी इक्वल टू, हम यहाँ पे फोर्स दिख रहे हैं, देखो एम ए वी ए माइनस यू ए, एम वी बी माइनस यू बी बाई टी, दिस गिव्स हाउ मच, एम यू ए प्लस एम यू बी इज इक्वल टू भाई साहब एम वी ए प्लस एम वी बी, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, एम वी ए प्लस एम वी बी, ओके। सो ये हो गया आपका क्या, देखो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे आपका एक बॉडी है जिसका मास है एम ए, यहाँ पे आपका बॉडी है जिसका मास है एम बी, ये भाई साहब आपका यू ए हो गया और ये हो जाएगा आपका यू बी, ठीक है, ये आपका यू ए है और यू बी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है भाई साहब। कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद क्या हो जाएगा, लेट्स से आपका वेलोसिटी हो गया वी ए और यहाँ पे आपका वेलोसिटी हो गया वी बी। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नहीं है ना, तो कल तेरा फिर टेस्ट रहेगा साइंस पे, पूरा सब पढ़ा दिया है ना मैंने, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नहीं है ना, है वी ए और वी बी, तो बाकी सबका टेस्ट रहेगा, तेरा ही रहेगा, तेरे को दूंगा मैं टेस्ट, ठीक है। एम ए और यू ए हो गया भाई साहब मास, और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, एम बी और ये हो गया भाई साहब आपका यू बी, ये कितना हो जाएगा वी ए और ये हो गया आपका वी बी आफ्टर कोलिजन, ये हो गया आपका क्या बोलो, बिफोर कोलिजन, दिस इज बिफोर कोलिजन, ठीक है, और ये हो गया आपका आफ्टर कोलिजन, ठीक है, दिस इज आफ्टर कोलिजन, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भाई साहब कितना हो जाएगा बताइए फटाफट, व्हाट विल बी द चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो यहाँ पे ये वाला बॉडी इससे टकरा रहा है, राइट, जब ये वाला बॉडी इससे टकरा रहा है, ठीक है, तो ये एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी लिख लेते हैं इसको, ठीक है, ये ए है और ये आपका बी है, सो दिस विल बी फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, है कि नहीं, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी विल बी इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। तो आपका क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। कैसे आ रहा है भाई साहब, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। व्हाट डज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट, एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये आपका एक्शन हो गया, ये हो गया रिएक्शन विच विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट है बोल के माइनस साइन लग रहा है, इक्वल है तो ये इक्वल हो गया भाई साहब, ठीक है, ओके। अभी आपने पढ़ा था भाई साहब क्या है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब एम वी माइनस यू बाई टी, कल अपन ने यही पढ़ा भाई साहब। तो फोर्स ए बी कितना हो जाएगा, फोर्स ए बी विल बी एम, समझ लो हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ ए की बात कर रहे हैं, तो वी ए माइनस वी हो गई फाइनल वेलोसिटी, है ना, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, ये हो गया मास ऑफ ए भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ एम, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, वी ऑफ बी माइनस यू ऑफ बी अपॉन टाइम टी। चाहिए, समझ में आ रहा है भाई साहब, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो किससे, टी से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलो, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एम बी यू बी, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब इसको क्या करेंगे, एम ए वी ए है, इसको अगर हमने इधर कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी यू बी
दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, MBUB प्लस MAUA। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, अगर अपन ने इसको इधर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो MBUB प्लस MAUA हो गया, इसको इधर ले लिया तो MAVA प्लस MBUB, तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आप देखो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये क्या है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। MBUB प्लस आपका MAUA इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आ रहा है बच्चा वाड़ी? ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, ओके, सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। ओके ओके ओके, तो चलिए भाई साहब अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो टाइप ए में देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। चलिए भाई साहब इसमें करते हैं, चलिए फटाफट से करना है इसको, सवाल को जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक एवरीवन। A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude. भाई साहब फटाफट से जो चीजें दी हुई है ना उसको लिखिए। गिवन आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, मास कितना दिया हुआ है 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है बोलो 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना है भाई साहब 2 सेकेंड्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ये गिवन चीजें हैं। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। भाई साहब फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स होता है क्या मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, कर लो भाई साहब, यहाँ पे मास कितना हो गया 5 kg और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा v दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड माइनस u दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम t दैट इज 2 seconds। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, 7 kg इंटू 7 minus 3 that is 4 meter per second upon 2 seconds। 2 2s are 4, ये हो गया कितना बोलो 5 2s are 10 kg meter per second square, that will be how much, kg meter per second square होता है आपका न्यूटन, तो F is equal to 10 न्यूटन। क्लियर, बस खत्म। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो मास कितना दिया हुआ है 5 kg। ठीक है, फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब आपका गिवन, आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 kg, टाइम इज 2 seconds, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड। फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दैट्स गोइंग टू बी 7 माइनस 3, तो आपका हो गया भाई साहब 2 मीटर पर सेकंड, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 10 न्यूटन। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना पड़ेगा। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square और a 4 kg mass at 2 meter per second square। देखो भाई साहब पहला वाला क्या है आपका गिवन, मास ऑफ बॉडी 1 m1 ये कितना है देखो 2 kg और एक्सेलरेशन a1 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास ऑफ बॉडी 2 ये कितना है बोलो 4 kg और एक्सेलरेशन कितना है बोलो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें कितना फोर्स लगेगा, F1 विल बी इक्वल टू m1a1, तो ये हो गया आपका 2 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितना हो गया भाई साहब 10 न्यूटन। ठीक है, F1 हो गया। F2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब m, ये हो गया a2, m2 इंटू a2, तो m2 की वैल्यू कितनी है 4 kg, a2 की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 8 न्यूटन। F2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 8 न्यूटन, F1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10 न्यूटन। ठीक है, कह रहे किसका ज्यादा भाई साहब फोर्स होगा इसका, तो विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, दिस वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, दिस वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। एक्सेलरेटिंग अ 2 kg बॉडी बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। सो मास 2 kg है भाई साहब, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे मास भाई साहब इतना है। ठीक है, तो मास इसका कितना है 2 kg है 4 kg, इसका भाई साहब एक्सेलरेशन 5, इसका 2, तो आपको यहाँ पे भाई साहब गिवन मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो F1 इज ग्रेटर देन
तो हम यहाँ पे F इक्वल टू एम ए को निकाल रहे हैं भाई साहब, तो 2 इंटू 5 दैट इज 10 न्यूटन, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8 न्यूटन। तो आपका F1 इज ग्रेटर देन F2, hence accelerating a 2 kg mass by 5 meter per second square will have to have a greater force than accelerating a 4 kg mass at 2 meter per second square। ठीक है, ओके ओके ओके। 2 persons managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road। ठीक है, एक लेवल रोड में भाई साहब क्या पुश कर रहे हैं ये, ठीक है, 1200 kg, mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road। The same motor car can be pushed by 3 persons to produce an acceleration of इतना। देखो दो लोग हैं, they can manage to push a motor car of this much, 2 people, 2 persons। ठीक है, गिवन कंडीशन, देखो पहला वाला कंडीशन क्या दिया हुआ है, दो लोग हैं, ठीक है, मास कितना है भाई साहब 1200 kg, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ कांस्टेंट स्पीड मतलब हाँ जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या हो जाएगा जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, v भी सेम u भी सेम, v माइनस यू आपका जीरो हो जाएगा। ओके, तो आपका मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये जो दो लोग फोर्स लगा रहे हैं इसका भाई साहब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। ठीक है, दे आर जस्ट एबल टू मूव इट along a level road। The same motor car can be pushed by 3 persons। सेकंड में क्या हो रहा है भाई साहब 3 persons इन्वॉल्व है। ठीक है, टू प्रोड्यूस एन, यहाँ पे भाई साहब मास वही है 1200 kg है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है आपका कितना 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार, तो हर एक इंसान का कितना फोर्स लग रहा है, हाउ मच फोर्स इज ईच पर्सन अप्लाइंग, with what force does each person put the motor car, कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे देखो कितना है, फोर्स का वैल्यू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जहां पे एक्सेलरेशन नहीं है वहां पे तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते, जहां पे एक्सेलरेशन है वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, ये हो गया 1200 kg इंटू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 टूजा हो गया भाई साहब कितना 24, और यहाँ पे 0 ये हो गया 240 न्यूटन। ठीक है, तीन लोग मिलकर 240 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, तो एक इंसान कितना लगाएगा 240 न्यूटन बाई 3 दैट इज 80 न्यूटन। क्योंकि यहाँ पे देखो अज्यूम दैट ऑल पर्सन्स पुश द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर एफर्ट, तो 80 न्यूटन का फोर्स भाई साहब लग रहा है। ठीक है, ओके, गिवन यहाँ पे 0, तो आपको पूछा है यहाँ पे देखो F इक्वल टू, तो आपका सिंपल है, देखो यहाँ पे 240 बाई 3 दैट इज 80 न्यूटन, ये हो जाएगा। आप इस पहले वाले कंडीशन पे ध्यान ना दीजिए, क्योंकि पहले वाले कंडीशन पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप फोर्स कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेलरेशन जरूरी है, जो सेकंड कंडीशन पे दिया हुआ है। कभी कभी के सवालों में कुछ कंडीशंस ट्रिकी दे देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। सो ईच पर्सन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ हाउ मच 80 न्यूटन। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल with a constant acceleration। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। ओके, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट पे स्टार्ट कर रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक भाई साहब हिल से रोल डाउन कर रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक एक्सेलरेशन इसका है भाई साहब। ठीक है, इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, तो एस की वैल्यू कितनी है भाई साहब 400 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है आपको 20 सेकेंड्स। ठीक है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वी दिया हुआ है, वी मालूम है तो नहीं निकाल सकते ना, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कर सकते हैं। इसीलिए बोलता हूं भाई साहब तीनों भी इक्वेशन को कभी भी टेस्ट किया करो, कौन सा तुम यूज कर सकते हो और कौन सा नहीं। ठीक है, एक टाइम आ जाएगा जब आप सवाल को देखकर ही बता सकते हैं कौन सा आप यूज कर सकते हैं और कौन सा नहीं, लेकिन इसके पहले ये प्रैक्टिस जरूरी है। आपका यहाँ पे V नहीं दिया हुआ है और A भी नहीं दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को कतई भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आते हैं, देखो S दिया हुआ है, यस, ठीक है, U दिया हुआ है भाई साहब, यस, T दिया हुआ है, यस, A दिया हुआ है नहीं,
टी दिया हुआ है यस, तो इस इक्वेशन को अपन यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट ए। यहां पे आते हैं, देखो v नहीं दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, s दिया हुआ है, लेकिन इसको भी आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो अननोन क्वांटिटीज है। किसी भी इक्वेशन में अगर दो अननोन क्वांटिटीज हो जाती हैं वो सड़ जाता है, वैसे उसको यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो चलिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी हो गई 400, u की वैल्यू कितनी है 0 इंटू टी, तो ये हो गया 0, हाफ a नहीं मालूम, t का भाई साहब कितना है 20 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाफ इंटू a इंटू 400 इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब 400 1 जा 400, तो a की वैल्यू, तो a बाई 2 इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब a का वैल्यू, ठीक है। सो फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, आल्सो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स। 7 टन मतलब कितना केजी 7000 केजी, ठीक है। फोर्स कितना हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे आपको क्या लिखना है 7000 केजी इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7000 इंटू 2 ये कितना हो गया भाई साहब 14000 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे न्यूटन, तो ये हो गया आपका कितना 14000 न्यूटन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। यहाँ पे एक कार उतर रहा है भाई साहब, इनिशियल वेलोसिटी 0, 400 टाइम टेकन दिस, मास इज 7000 केजी, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई साहब ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, f इज इक्वल टू ma, ठीक है। यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर मतलब हो गया भाई साहब आपका कितना, दिस विल बी इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7000 ये हो गया आपका 14000 न्यूटन, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 14000 न्यूटन। चलिए भाई साहब ये वाला सवाल तो करना ही करना है। अ हैमर ऑफ 500 ग्राम, अ हैमर है भाई साहब, इसका मास कितना है 500 ग्राम, मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ नेल। भाई साहब इससे आप हथौड़ा मार रहे हैं इस नेल पे, ठीक है। द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड, ठीक है। द नेल स्टॉप्स द हैमर मतलब यहाँ पे धाड़ ऐसे मारते हैं जब आप, तो ये जो पॉइंट, ये जो लग रहा है, ये जो टाइम है ये कितना है 0.01 सेकेंड, एक बहुत ही स्मॉल टाइम है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, चलिए भाई साहब फटाक से करना है। देखो ये हैमर इसको मार रहा है ना, इसको समझो। तो जब ये मार रहा है, चलिए ये पहले तो बात भाई साहब, ये 500 केजी को आप 500 ग्राम्स है ना, ठीक है। आपका मास कितना दिया हुआ है 500 ग्राम, तो उसको आप क्या लिखेंगे 0.5 केजी। सो इट इज स्ट्राइकिंग द हैमर, ठीक है। ये हैमर, ये नेल को स्ट्राइक कर रहा है, नेल को स्ट्राइक कर रहा है भाई साहब, कितने स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है ये, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है 0. तो आपका यहाँ पे v का वैल्यू, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो आपका भाई साहब टाइम कितना है 0.01 सेकेंड्स है, ठीक है। ये स्ट्राइक करने के बाद स्टॉप हो रहा है, लेकिन कितने टाइम पे स्टॉप हो रहा है 0.01 सेकेंड में। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है बोलो, इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बोलो, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई ना, ठीक है। और ये टाइम कितना लग रहा है बोलो 0.01 सेकेंड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई साहब। इतने वेलोसिटी से हैमर आ रहा था, हैमर स्ट्राइक करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0, लेकिन कितने देर तक वो कांटेक्ट पे रहा 0.01 सेकेंड तक। तो आपका यहाँ से एक्सीलरेशन निकल आएगा, एक्सीलरेशन विल बी v माइनस u बाई टी, बेसिकली रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे 0 माइनस 50 बाई टी दैट इज 0.01, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो माइनस 50 बाई 0.01, टड़ंग यहाँ पे 2 0 हो गए, तो यहाँ पे हो गया आपका 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो आपका ये 5000 समझ में आ रहा है, ये 0.01 टड़ंग यहाँ पे 2 0 आ गए, तो 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। ओके, तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू 0.5 kg इंटू 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 5 यहाँ पे कितना हो गया 25, और ये हो जाएगा भाई साहब आपके 3 zeros, ठीक है। 1 0 मर जाएगा भाई साहब इसमें क्योंकि पॉइंट है, ठीक है। तो दिस विल बी 2500 न्यूटन, 2500 न्यूटन, ठीक है। दैट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इट अप्लाइज, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी भाई साहब 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम टेकन इज 0. तो फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब, इसको अपन लिखेंगे 0.5 kg, ये है आपका 50 मीटर पर सेकेंड,
u कितना है 0.01, तो ये हो गया आपका 0। टू फाइंड f, तो आपका भाई साहब यहाँ पे f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 - 50 -50, तो ये हो गया आपका -5000 मीटर, तो आपका हो गया -2500 न्यूटन। यहाँ पे माइनस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इतना फोर्स उस पर लग रहा है, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल इज हाउ मच, -2500 न्यूटन। द नेगेटिव साइन शोज दैट फ्रिक्शन फोर्स बीइंग एक्सर्टेड, तो उसके ऊपर भाई साहब फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी। डन डन डन, जल्दी करना है फटाफट। क्या गिवन डेटा दिया हुआ है बोलो? गिवन आपका मास दिया हुआ है, गिवन मास आपका कितना है भाई साहब 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। तो कोई लेक है जो फ्रोज हो गई है, मतलब अभी बर्फ है इसके ऊपर, ठीक है। एक स्टोन को आपने थ्रो किया है, ये स्टोन भाई साहब कैसे जाएगा, सरकता हुआ जाएगा, और क्योंकि सरकता हुआ जाएगा और आपको मालूम है बर्फ के ऊपर फ्रिक्शन नहीं होता है, सर सब फिसल जाते हैं, है ना, तो ये भाई साहब फ्रिक्शनलेस सरफेस हम अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। A stone of 1 kg is thrown with a velocity across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 मीटर। तो ये भाई साहब कितने डिस्टेंस पे ये रुक रहा है, 50 मीटर के डिस्टेंस पे रुक रहा है। What is the force of friction between, तो बहुत ही हल्का फुल्का सा फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है। आपका फ्रिक्शन जनरली 0 रहता है आइस के सरफेस पे, लेकिन यहाँ पे बहुत हल्का फुल्का सा फ्रिक्शन रहेगा। तो चलिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है भाई साहब 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। आपको भाई साहब टाइम टी नहीं डिस्टेंस दिया हुआ है, s इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 50 मीटर। तो पहले तो आपको यहाँ पे फोर्स निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना है भाई साहब, फटाफट से टेस्टिंग कीजिए। यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या होता है u, क्योंकि ये रिटार्डेशन, चलिए u प्लस at है ना। यहाँ पे देखो v मालूम है नहीं, और a भी नहीं मालूम है, u और t मालूम है, इसको नहीं यूज कर सकते। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या क्या अननोन है, देखो s मालूम है, यस, ठीक है, u, अच्छा v मालूम है ना यहाँ पे, और इसको यूज कर सकते हैं भाई साहब। यहाँ पे v मालूम है ना, ओके, u भी मालूम है। चलिए इसको अगर हमने यूज किया, अप्लाइंग, अप्लाइंग क्या भाई साहब, अप्लाइंग v इज v 0 है ना, हाँ t नहीं दिया हुआ ना, करेक्ट, आपका a और t नहीं मालूम, तो इसको नहीं यूज कर सकते। s u भाई साहब दिया हुआ है, ठीक है, t दिया हुआ है नहीं, ठीक है, और a भी नहीं मालूम। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v मालूम है, u मालूम है, a भी मालूम है, सॉरी a नहीं मालूम है और s मालूम है, तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाइंग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a s कितना है भाई साहब आपका 50, तो यहाँ पे हो गया आपका 400, दैट विल बी प्लस 52 जा 100a, ठीक है। तो ये हो गया आपका -400 इज इक्वल टू 100a, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, -4 का मतलब समझो रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है भाई साहब, फोर्स का देखो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा इसको रोकने के लिए, m इंटू a, दैट विल बी 1 इंटू 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दैट विल बी हाउ मच 4, ये माइनस हो गया ना भाई साहब, माइनस, तो ये आपका 4, ये -4 न्यूटन का फोर्स इस पे एज अ फ्रिक्शन बतौर लग रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे देखो ये फ्रोजन लेक है भाई साहब, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस पत्थर को फेंका गया, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, तो मास ऑफ द स्टोन 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 50 मीटर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा भाई साहब, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, दिस विल बी -4, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 1 इंटू -4, तो ये हो गया आपका -4 न्यूटन।
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द आइस एंड द स्टोन इज -4 न्यूटन। द नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये भाई साहब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर, क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे सवाल करना है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से करना है भाई साहब। इधर आ जाएगा फिर पूरा तू ही, जल्दी 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 कुर, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक 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 फटाफट। 8000 kg है भाई साहब एक ट्रेन का, पुल्सर ट्रेन, ये आपका इंजन है भाई साहब, देखो 8000 kg ये इंजन है भाई साहब, कितने का है, 8000 kg का है, दिस इज बेसिकली 8000 kg, पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg, ठीक है, हर एक का भाई साहब यहाँ पे कितना है 2000 kg है, 1 2, ठीक है, 3, फिर भाई साहब आपका 4 और ये हो गया आपका 5, ठीक है, ये सबका 2000 kg है। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, यहाँ पे भाई साहब कितना फोर्स एक्सिट कर रहा है 40,000 न्यूटन, ठीक है, 40,000 न्यूटन इंजन इन वैगन्स पे फोर्स लगा रहा है, इंजन इन वैगन्स पे फोर्स कितने का लगा रहा है भाई साहब 40,000 न्यूटन। क्या ये वाला स्विच दे सकते हैं, वो जो वायर, हाँ थैंक यू, ठीक है, 40,000 न्यूटन का फोर्स इन 5 वैगन्स पे ये लगा रहा है, ठीक है, ओके। द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ, तो यहाँ पे भाई साहब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कितना 5000 न्यूटन का, ठीक है। देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, कितना एक्सेलरेटिंग फोर्स हो जाएगा भाई साहब, देखो खींचना किसको है, इनको खींचना है ना, इंजन कितना फोर्स लगा रहा है 40,000, इनका टोटल मास कितना हो जाएगा, अरे भाई साहब 2 × 5 10,000, ठीक है, टोटल मास ऑफ द वैगन्स, नहीं 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 नहीं, ओके, टोटल मास ऑफ द वैगन्स कितना हो जाएगा भाई साहब 2000 इनटू भाई साहब कितना हो गया 5, है ना, तो दैट विल बी 10,000, ठीक है, प्लस इसका कितना है भाई साहब आपका 8,000, तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब 18,000, ठीक है, 18,000 हो गया, क्लियर है। इसका फोर्स कितना लग रहा है 40,000, ठीक है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्योंकि देखो एक फोर्स लग रहा है इस तरफ और एक फोर्स लग रहा है भाई साहब पीछे की तरफ, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो आपका दिस माइनस दिस ना, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 40,000 माइनस 5,000, तो दैट विल बी हाउ मच 35,000, ठीक है, 35,000 ये आपका नेट फोर्स है, 35,000 ये हो गया आपका भाई साहब नेट फोर्स, ठीक है, ओके। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, अरे भाई साहब टोटल मास देखो, सॉरी ये न्यूटन कहां से होगा भाई साहब केजी, ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे देखो 18, F इज इक्वल टू क्या होता है M इंटू ए, तो F कितना है आपका यहाँ पे 35,000 इज इक्वल टू M कितना है भाई साहब आपका 18,000, ठीक है, इंटू ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 35,000 बाई 18,000, ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, दिस विल बी द एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन सी, क्या द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ द, मैंने गड़बड़ किया है भाई साहब यहाँ पे, मास ऑफ ईच वैगन, फोर्स तो कितना हो गया भाई साहब आपका, मास ऑफ इंजन 8,000, मास ऑफ ईच 2,000, तो फोर्स एक्सर्टेड, फ्रिक्शनल फोर्स, नेट एक्सेलरेशन भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 35,000 है ना, 35 एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन F अपॉन M, तो 35,000, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, 35,000 अपॉन 18,000 ये हो गया आपका नेट आपका एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो आपका 18 कुछ आएगा 18/35 है ना, सो ये 1.94 आ गया। फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन 2, अभी देखो यहाँ पे ऐसे आपके 5 1 2 3 1 2 3 4 ऐसा था ना, 5 वैगन से ना
1 2 3 4 5 और ये था भाई साहब आपका इंजन, है ना। ये 1 2 3 4 5। यहां पे क्या पूछा जा रहा है, फोर्स ऑफ वैगन 1 और 2, इसका इस पे कितना फोर्स लगेगा, इसका इस पे कितना फोर्स लगेगा, बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 कितना लगेगा, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। इसको ये समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया आपने, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन भाई साहब इतना आ गया, ठीक है। अरे भाई साहब सिंपल है ना, देखो एक्सेलरेशन ट्रेन का तुमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे मास बताओ कितना है, इसका मास कितना है 8,000 था ना, ओके इसका कितना है 2000, तो मास इसका कितना हो गया, टोटल मास कितना हो गया 10,000, ठीक है। 10,000 इंटू एक्सेलरेशन कितना है भाई साहब 1.94, ठीक है। ये हो गया इसका भाई साहब फोर्स, इसका फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, 2 का 1 2 3 4, ये कितना हो गया 8,000, है ना। 2 के बाद तो 4 है ना, 2 3 4, इस सबको ऐड करोगे ना भाई साहब, क्लियर है, सब जुड़े हुए हैं ना। तो यहाँ पे 8,000 इंटू 1.94, है ना। तो फोर्स कितना एक्ट करेगा, दिस माइनस दिस, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, दिस माइनस दिस मतलब 2000 इंटू 1.94, ठीक है, क्लियर है, 2000 इंटू 1.94। सो मास ऑफ 4 वैगन्स बिहाइंड, समझ में आ रहा है, इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके कितना हो गया भाई साहब आपका, दिस विल बी 8,000 इंटू 1. ये आपका हो गया भाई साहब 1.520, ठीक है। ओके ओके ओके। In an automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? चलिए फटाफट इजी एकदम से सवाल। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका भाई साहब मास दिया हुआ है आपको कितना है 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration? नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने नेगेटिव एक्सेलरेशन से इसको स्टॉप करवाना है, ठीक है। तो इसको अगर स्टॉप करवाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट विल बी हाउ मच 1500 kg into minus 1.7 meter per second square. So that will be how much? This will be 15 into 1.7. तो यहाँ पे 15 into 17 कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 8 9 10, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक है। कितना हो गया भाई साहब आपका 65.5 और इंटू कितना हो गया आपका 100, ठीक है। 6,5 एक मर जाएगा भाई साहब पॉइंट में, 6550 न्यूटन कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी द फोर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल। नहीं यार 2550 है, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हुआ है, ओके ठीक है, 2550 न्यूटन हो जाएगा। ओके चलिए भाई साहब, a force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे फोर्स कितना है बोलो, 5 न्यूटन gives a mass m1, यहाँ पे मास है कोई m1 and acceleration कितना है बोलो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा कोई मास है जिसका मास है भाई साहब m2 एंड एक्सेलरेशन इसको कितना दे रहा है भाई साहब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेम फोर्स, समझ में आ रहा है, एक फोर्स है 5 न्यूटन का जो m1 मास को कितना एक्सेलरेशन दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही फोर्स है 5 न्यूटन का जो m2 मास को कितना एक्सेलरेशन दे रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर? तो
तो अगर दोनों भी मासेस टाइड होते तो कितना एक्सेलरेशन होता, ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए भाई साहब यहाँ पे है 5, ये 5 है भाई साहब। देखो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे फोर्स m1 इंटू ए, तो 5 इज इक्वल टू m1 इंटू 10। तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5/10 दैट इज 0.5 kg। ठीक है, ये हो गया आपका m1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, m1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 kg। ओके, अभी हम इसमें आते हैं। देखो फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, m इज इक्वल टू m2, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू m2 इंटू ए दैट इज 20। तो आपका m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 5/20। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/20 इज हाउ मच, 5, और ये हो गया 5/2 लिख सकते हैं अपन। अब 1/10, 5/2 की वैल्यू कितनी होगी, 2.5, तो 2.5/10 दैट इज 0.25 kg। ठीक है, ओके, तो एक का मास हो गया कितना, 0.5 kg, दूसरे का मास कितना हो गया, 0.25 kg, है ना। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास m विल बी इक्वल टू 0.5 प्लस 0.25, सो दैट विल बी हाउ मच, 0.75 kg। ये हो जाएगा आपका टोटल मास। अभी आप फिर से फोर्स कितना ही दे रहे हो, 5 न्यूटन, इसमें कितना एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि अभी ये टोटल मास हो गया। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू टोटल मास अभी आपका कितना है, 0.75 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/0.75। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 500/75। ठीक है, सो दिस विल बी 500/75। ठीक है, 5 भाई साहब ये हो गया, 5 10 50 और 0, 5 15 5 3 15, 5 20, तो ये हो गया आपका कितना, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कुछ आ जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे देखो आपका m1 का मास कितना आया है, 0.5 kg। m2 का भाई साहब मास कितना आया है, हाउ मच इज द m2 मास, दिस इज 0.25। टोटल मास अभी कितना हो गया, 0.75। तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई साहब, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। यहाँ पे भाई साहब मास कितना दिया हुआ है, देखो 20 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 20/1000 kg, सो दैट विल बी हाउ मच, ये कैंसिल तो 0.02 kg हो गया। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। देखो 20 से कितना आ गया भाई साहब, यहाँ पे कितना था, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ये। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 0 पे आया है, कितने टाइम पे आया भाई साहब, टाइम देखो कितना है भाई साहब आपका, 10 सेकेंड्स। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बोलो, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.2 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं भाई साहब। आपका 20/100 हो गया मीटर। ठीक है, ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बोलो, 0। ठीक है, ओके, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका v माइनस यू बाई टी, तो ए हो गया 0 माइनस यू दैट इज 0.2 अपॉन टी दैट इज 10, तो ये हो गया माइनस 0.2 अपॉन 10 दैट इज हाउ मच, माइनस 0.02 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की क्या किसमें 20 है ना, 20/100, तो 0.2 हो गया। मास इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया, मास इज हाउ मच, ये हो गया आपका 0.02 kg इंटू माइनस 0.02 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, सो दैट विल बी 0.0004 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो माइनस 0.0004 न्यूटन इस पे लग रहा है। ज्यादा करके इसका आंसर डाइंस में ही रहेगा। ठीक है, ओके, अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड इसको इस्तेमाल किया रहेगा तो। ठीक है, मास ऑफ द बॉल भाई साहब 0.02 kg, तो आपका वेलोसिटी इनिशियल कितना हो गया, 0.2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी फाइनल इतना हो गया 10 सेकेंड्स। तो आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, v माइनस यू बाई टी, तो ये हो गया आपका कितना, माइनस 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया कितना, देखो माइनस
0.0004 न्यूटन, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड इज दिस मच। नेगेटिव क्यों होगा भाई साहब? क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ये फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी को रिटार्ड करके उसको भाई साहब स्टॉप करा देगा, ठीक है। ओके ओके ओके। A motor car is moving with a velocity of 108 kilometers per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. तो 4 सेकंड लगते हैं ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद। कैलकुलेट द फोर्स exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 kg, ठीक है। तो भाई साहब मोटर कार का मास कितना हो जाएगा बोलो? इट विल बी 1000 kg। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? मोटर कार का मास हो गया, ये मोटर कार का मास हो गया 1000 kg, ठीक है। क्लियर है? ओके। और क्या दिया हुआ है देखो, इज मूविंग विद द वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका? इनिशियल वेलोसिटी इज 108 किलोमीटर पर आवर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको अपन मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर पर आवर एसआई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। 8 6 हो गया ये, तो ये हो गया कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया यू, ठीक है। ओके। टाइम कितना है भाई साहब आपका? 4 सेकेंड्स। वी कितना है भाई साहब आपका? 0, ठीक है। वी कितना है भाई साहब आपका? 0, ठीक है। इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कैलकुलेट द फोर्स। तो आपका कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है भाई साहब? फोर्स विल बी इक्वल टू m इंटू ए। तो आपका भाई साहब एक्सेलरेशन कितना होगा? v माइनस यू बाई टी। v कितना है यहाँ पे आपका? 0 माइनस यू दैट इज -30 अपॉन टी। टाइम कितना हो गया आपका? 4। सो ये हो गया आपका -30/4, दैट विल बी हाउ मच? 4 7 28 और ये हो गया 4 5 20, -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना होता है भाई साहब? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना हो गया आपका? यहाँ पे मास इज 1000 kg, 1000 kg इंटू -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच? 7500 न्यूटन। इतना फोर्स भाई साहब ब्रेक्स का लगेगा, ठीक है। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये आपका देखो टाइम है, यहाँ पे दिया हुआ है वेलोसिटी। तो u इज इक्वल टू, पहले अपन ने इसको क्या कर लिया? 30 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। एक्सीलरेशन हो गया, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? -7.5। फोर्स कितना हो जाएगा? 7500 न्यूटन। So the force exerted by the brakes is 7500 न्यूटन। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज अ रिटार्डिंग फोर्स। ये भाई साहब व्हीकल को स्टॉप करा रहा है, ठीक है। डी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट। अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम मास ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी दिया हुआ है यहाँ पे। चलो रे जल्दी।
तुमने मेरे को सिर्फ सिलेबस फॉरवर्ड किया है, टाइम टेबल फॉरवर्ड नहीं किया भाई। ये देख, मैं भी देख रहा हूँ, सिर्फ सिलेबस है ये, टाइम टेबल किधर है? तुम अचानक भयानक में बोलोगे भाई साहब मेरा कल से एग्जाम है, तो मैं क्या करूँ? पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ये तुम्हारा ही है ना? टाइम टेबल मिल जाएगा आज? तू क्या फॉरवर्ड करता है तेरे को ही नहीं मालूम। और फिर बोलता है सर कल से मेरे एग्जाम आ रहे हैं। मेरे को क्या सपना आएगा क्या भाई? टाइम टेबल तूने फॉरवर्ड किया ही नहीं है, सिलेबस फॉरवर्ड किया है। ओके, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली। तो भाई साहब एक बुलेट है, ठीक है, गोली, ठीक है, 10 ग्राम, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा? 10/1000 kg। सो दैट विल बी हाउ मच? दिस विल बी 0.01 kg, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 150 मीटर पर सेकेंड है भाई साहब, ठीक है। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, तो ये भाई साहब एक वुडन ब्लॉक पे ये जाकर स्ट्राइक करती है, एंड कम्स टू रेस्ट। तो भाई साहब ये आगे जाकर यहाँ पे अंदर चली जाती है, धस जाती है भाई साहब, ठीक है। तो वुडन ब्लॉक पे गया और धस गया भाई साहब, ये अंदर चला गया, ठीक है, बुलेट। और कब तक रेस्ट पे आती है भाई साहब? 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड तक अंदर जा रही है, ठीक है, 0.03 सेकेंड्स। तो 0.03 सेकेंड्स के जाने के बाद वो रुक जाती है, ठीक है, बुलेट। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट। तो ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके। into the block, also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet। तो ये वुडन ब्लॉक कितना फोर्स इस पे एग्जर्ट कर रहा होगा। देखो हमने कल ही पढ़ा था, एवरी एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स बुलेट वुड पे एग्जर्ट कर रहा होगा, उतना ही फोर्स वुड बुलेट पे एग्जर्ट कर रहा होगा, है ना, ठीक है। तो पहले तो अपन इस डिस्टेंस को निकालते हैं। देखो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बुलेट की? मैंने आपसे पूछा था फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये रुक रहा है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी भाई साहब आपका कितना हो गया? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? 150 मीटर पर सेकेंड। तो आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना है, कौन सा वैल्यू निकालेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस at होता है भाई साहब। v की वैल्यू कितनी है? 0। ये हो गया आपका 150 प्लस a इंटू t। कितना टाइम लगा? देखो 0.03, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका -150 इज इक्वल टू 0.03 a। सो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? -150 अपॉन 0.03। सो ये हो गया आपका -15। यहाँ पे आपके 2 जीरोस, 1 2, तो 1 0 2 जीरोस हो गए आपके, और यहाँ पे हो गया 3 3 5 15। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना लगा भाई साहब? -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना भाई साहब एक्सेलरेशन लगा इसका, ठीक है, इतना एक्सेलरेशन लग रहा है। ये एक्सेलरेशन भाई साहब इस पे लगा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है बेसिकली, जो बुलेट को रोक रहा है, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। तो अभी आपको एस निकालना है। एस यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यू आपका कितना है भाई साहब? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 150 इंटू कितना है भाई साहब? टाइम 0.03 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू देखो नेगेटिव आई है, ध्यान देना, ठीक है, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है, इंटू टी का स्क्वायर दैट इज 0.03 इंटू 0.03, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो इधर कितना हो जाएगा बोलो? 15 3 हो गया 45 और एक 0 1 2, तो यहाँ पे हो गया आपका 4.5, है ना। 150 इंटू 3 कितना होता है? 450, और ये 2 0 2 पॉइंट, तो ये हो गया 4.50 प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कितना हो गया? हाफ इंटू 5000,
ये प्लस कैसे माइनस हुआ, ये वाला माइनस इधर आया भाई साहब, ये वाला जो माइनस है ये इधर आ गया, हाफ इंटू 5000 इंटू यहाँ पे 0.0009, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 4.5 माइनस यहाँ पे 9 5 जा कितना हो गया 45, 9 5 जा 45 और 1 2 3 4, 4 जीरो, 3 जीरोज हो गए ना, सॉरी 3 जीरो हुए एक, ठीक है। अभी हम 1 2 3 4, 1 2 3 4 अपॉन 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, 4.5 माइनस 4.5/2, तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हमने 4.5 को कॉमन निकाला, 1 माइनस हाफ, दैट विल बी 4.5/2, 4.5/2, तो s की वैल्यू कितनी हो गई, s की वैल्यू हो गई 2 2 4, 2 2 4, 2.25 मीटर्स, s की वैल्यू हो गई भाई साहब 2.25 मीटर, दैट इज हाउ इट विल एंटर, इतना एंटर करेगा वो, ठीक है, क्लियर है, s की वैल्यू हो गई भाई साहब 2.25 मीटर्स। वेलोसिटी हो गई भाई साहब, ये बुलेट गया, ठीक है, ये बुलेट इज बेसिकली फायर्ड एंड इट गोज टू अ डिस्टेंस, तो मास का हो गया भाई साहब 0.10, ठीक है, टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड कितना हो जाएगा, तो पहले तो अपन यहाँ पे इनसे क्या निकाल लेंगे, वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन विच इज हाउ मच, आपका -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे इसको अगर लगाया तो दिस विल बी गिविंग अस व्हाट, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना 50 न्यूटन, ठीक है। चलिए अभी हम बात करेंगे भाई साहब मोमेंटम की, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड्स, ठीक है, 6 सेकंड में। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, मास क्या दिया हुआ है भाई साहब ऑब्जेक्ट का, व्हाट इज द मास गिवन एज, ये हो गया आपका 100 kg, मास गिवन इज 100 kg, ठीक है, यूनिफॉर्मली। अभी विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 8 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना हो गया 6 सेकंड्स, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम आपका कितना होगा, व्हाट विल बी द इनिशियल मोमेंटम, एम यू, ये हो गया, इनिशियल मोमेंटम एम यू हो गया, तो एम की वैल्यू कितनी हो गई 100, ठीक है, यू कितना हो गया 5, तो ये हो गया 500 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा बोलो, फाइनल मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे मास कितना है बोलो 100 का, और v कितना हो गया 8, तो ये हो गया आपका 800 kg मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ रहा है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा बोलो mv माइनस mu, दिस इज चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, तो ये कितना है भाई साहब आपका 800 माइनस 500, दैट इज 300 kg मीटर पर सेकेंड अपॉन भाई साहब टाइम कितना है, टाइम इज हाउ मच 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब 6 5 30, 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो ये हो गया आपका कितना, फोर्स इज 50 न्यूटन, ठीक है, फोर्स आपका कितना हो गया भाई साहब 50 न्यूटन का, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई साहब इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी भाई साहब कितनी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी मोमेंटम इज आपका, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया बोलो 500 kg मीटर पर सेकेंड, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 8 माइनस 5/6, दैट इज, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो पूछा ही नहीं, क्यों कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, क्या तो आपका F कितना हो जाएगा, सीधा सीधा अपन निकाल सकते हैं, इट इज 50 न्यूटन। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक एवरीवन।
हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम्स, तो आपका भाई साहब मास कितना दिया हुआ है, देखो 200 ग्राम्स। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 200 बाई 1000 क्या हो जाएगा, केजी। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका 0.2 केजी। ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपका U1 ये कितना हो जाएगा भाई साहब, आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी। ये U कितना हो गया भाई साहब, आपका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी, तो आपका भाई साहब वेलोसिटी कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 kg ग्राम which is 0.2 kg is traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second, ठीक है भाई साहब। ये इधर जा रहा था, देखो हॉकी का बॉल जो है इधर जा रहा था, हॉकी स्टिक ने इसको मारा तो ये ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न हुआ। यहाँ पे किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। इधर वाली वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड, कितना चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। देखो ना आपका मास और ये था इनिशियल वेलोसिटी, ये कितना था भाई साहब आपका 0.2 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गया mu, ठीक है। mv कितना है बोलो, ठीक है, ये हो गया 0.2 इंटू 5, तो ये हो गया कितना 1 kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान दो ये v जो है और u जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो आपका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा बोलो, अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब, mv माइनस mu। लेकिन ध्यान दोगे अगर ये mv है इसको अपन माइनस ही लिख सकते हैं, ये mv को अपन ने अगर प्लस लिया तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 1 kg मीटर पर सेकेंड माइनस 2 kg मीटर पर सेकेंड, सो ये हो गया आपका कितना 3 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, दिस विल बी द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया -3। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भाई साहब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। Introduction. Every time we move something, use our pencil or walk, we are using force. Think about how many times you would lose your papers if inertia didn't make it stay where you put it. Objectives. At the end of this lesson, you'll be able to define force, distinguish between balanced and unbalanced force, Newton's law of motion, relation between force and the state of motion attained by it, understand the conservation of momentum.
Force and its types. The object will undergo change in its direction, speed, or shape only if force acts on it. Hence, force is defined as: force is any influence that causes an object to undergo a change in speed, a change in direction, or a change in shape. Force is a vector quantity. Force is of two types: balanced and unbalanced. Balanced force means two forces are acting on opposite sides of the body, and that body does not change its position. Example: a block pushed from both the sides with equal force. Unbalanced force is one that is not opposed by an equal and opposite force to cause a change in the object's position. Example: when block with great force on one side. Newton's first law of motion. The book will not move by itself. It will change its state of rest only when force of hand acts on it. This explains us the first law of motion. First law of motion states that a body will remain at rest and a body will remain in motion until and unless external force acts on it. Application of Newton's first law of motion. When a bus starts suddenly, the passengers fall backward because of inertia. The passenger tends to remain in the state of rest even if the bus has started moving. Inertia is the property of the body due to which it resists the change in its state of rest or of uniform motion. Mass is the measure of the inertia of a body. Larger the mass, greater is the inertia. Example: when the car stops suddenly, the driver is jerked forward because of inertia. The passenger tends to remain in state of motion even if the bus has stopped moving. Newton's second law of motion. Newton's second law of motion states that the force acting on the body is directly proportional to the mass of the body and acceleration produced in the body in the direction of the force applied. F is equal to m into A, where F is equal to force, m is equal to mass, A is equal to acceleration. Units of force. The SI unit of force is Newton. Newton is defined as the force acting on the body of mass 1 kg, producing an acceleration of 1 meter per second square. Unit is equal to kilogram meter per second square, or Newton. To calculate force of body having mass 1000 kg and acceleration of 0.5 meter per second square, then F is equal to 1000 into 0.5, which is equal to 500 Newton or kilogram meter per second square. Application of Newton's second law of motion. Cricket player lowers his hands along with the ball to catch it because the acceleration of the ball gets reduced and hence overall smaller force is applied to stop the ball and no injury is caused to the hands of the player. Momentum. Momentum is mass in motion. P is equal to m into v, where P is equal to momentum, mass is equal to mass of the body,
V is equal to velocity of the body. SI unit is kilogram meters per second. Hence, combined effect of mass and velocity is called momentum. It is a vector quantity. The change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in direction of force. Formulation of second law of motion. The change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in direction of force. Let the initial momentum be P1, which is equal to mu. Let the final momentum be P2, which equals mv. The change in momentum is P2 minus P1, which equals mv minus mu. Rate of change of momentum is m into v minus u whole upon t. Force is equal to k into m into v minus u whole upon t. Force is equal to kma, where k is the proportionality constant. Newton's third law of motion. Whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. Every action has equal and opposite reaction. Examples to illustrate Newton's third law of motion. How do we walk? When we walk on the ground, our foot pushes the ground backward, and in return, the ground pushes our foot forward. Why the cannon recoil? When ball is fired from a cannon, the force sends the ball forward and is equal to the force sending the cannon backward, hence the cannon is said to be recoiled. Jet aeroplanes and rockets. The action of the gases downwards of the rocket gives equal and opposite reaction to the rocket to move upward with great speed. The case of hose pipe. The fireman directs a powerful stream of water. They hold it tightly because it has tendency to go backward due to the backward reaction of water rushing in forward direction. Law of conservation of momentum. When two or more bodies act upon each other, their total momentum remains constant when no external force exerts on it, is called law of conservation of momentum. Momentum is never created or destroyed. It is also called principle of conservation of momentum. Let two objects of mass ma and mb traveling in the same direction have initial velocities as ua and ub respectively, and their final velocities be va and vb respectively. The rate of change of momentum of ball A be FAB, which is equal to ma into va minus ua upon t. The rate of change of momentum of ball B, FBA, is equal to mb into vb minus ub upon t. According to the third law of motion, every action has equal and opposite reaction. Hence, the force exerted when both objects get coiled is FAB is equal to minus FBA. On solving, we have MAUA plus MBUB is equal to MAVA plus MBVB, where MAUA plus
mb/ub is the total momentum before collision, and ma/va plus mb/vb is the total momentum after collision. The sum of the momenta of the two objects before collision is equal to the sum of the momenta after the collision when no external unbalanced force acts on it. Momenta is the plural form of momentum. Did you know Sir Isaac Newton sought to describe the motion of all objects using the concepts of inertia and force, and in doing so he found that they obey certain conservation laws. Equilibrium occurs when the resultant force acting on a point particle is zero. In systems where objects are moving with different velocities, it is impossible to determine which object is in motion and which object is at rest. In other words, to phrase matters more technically, the laws of physics are the same in every inertial frame of reference, that is, in all frames related by a Galilean transformation. Weightlessness when in free-fall orbit around the Earth and Newton's law of motion are more easily discernible in such environments. Summary. Let us summarize what we have learned. First law of motion. An object will be in the state of rest or in motion until external force acts on it. The mass of the object is a measure of inertia. Force of friction always opposes the motion of objects. Second law of motion. The rate of change of momentum of the object is proportional to the unbalanced force in the direction of force applied. The SI unit of force is kilogram-meter per second square. Third law of motion. Every action has equal and opposite reaction. The total momentum is always conserved.